تصور کیجئے ایک ایسی عظیم ترین طاقت جو اپنے وقت کا رومن ایمپائر تھی، ایک ایسی تہذیب جس کے پاس دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر تھا۔ بالکل، اور ایسی طاقت تھی جس کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا۔ صحیح کہا، لیکن پھر وہ اچانک اس طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ صدیوں تک تاریخ دان اس شہر کے وجود پر ہنستے رہے۔ ہنستے تھے کیونکہ مغربی محققین اسے صرف ایک افسانہ یعنی ایک فیری ٹیل کہتے تھے۔ ایگزیکٹلی، اور مذہب پر تنقید کرنے والوں نے تو اسے قرآن کی ایک خیالی کہانی قرار دے دیا تھا، کیونکہ زمین پر اس کا ایک پتھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اصل میں وہ لوگ فزیکل پروف مانگ رہے تھے جو ریت نے چھپا لیا تھا۔ پر پھر 1992 کا سال آیا۔ خلا میں موجود ناسا کے ایک سیٹلائٹ نے زمین کی طرف دیکھا اور صحرائے عرب کی سوکھی ریت کو بھیدتے ہوئے کچھ ایسا دریافت کیا جس نے ہزاروں سال کے انکار کو ایک جھٹکے میں غلط ثابت کر دیا۔ یعنی ریت نے بالآخر اپنا راز اگل ہی دیا تھا۔ ہاں، اور یہ کوئی عام دریافت نہیں تھی۔ بالکل، ناسا کو صرف کوئی خنڈر نہیں ملے بلکہ انہیں ایک پوری تہذیب کا نام و نشان ملا تھا، ایک ایسی جگہ جسے مٹی نے پوری طرح نگل لیا تھا۔ آج ہم اس عظیم راز کی تہہ تک جائیں گے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے پاس تحقیق کا ایک زبردست خزانہ ہے۔ جی، ہم قرآن کی آیات، احادیث اور کلاسیکل تفاسیر جیسے ابن کثیر اور الطبری کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم ناسا کی ریڈار ٹیکنالوجی، پیلیو کلائمیٹ یعنی قدیم موسم کی تحقیق اور آرکیولوجسٹ کی رپورٹس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ ستونوں والا ایرام آخر تھا کیا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ کہ قرآن نے ایرام کا ذکر صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ایک خوفناک عبرت، ایک وارننگ کے طور پر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کو مٹا دیا۔ تو آئیے اس کا آغاز بالکل وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کا پہلا ذکر نازل ہوا۔ جب میں نے سورہ الفجر دیکھی تو اس نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ جی، سورہ الفجر کی آیت 6 سے 14، اس میں ایک عجیب سا تحیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارام کے ساتھ۔ صحیح، اور آگے ہے کہ جس جیسا شہر ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد قرآن تھمود اور فرعون کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ترتیب واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل اہم ہے۔ قرآن نے قوم عاد اور ارم کو فرعون اور مصر کی تہذیب سے بھی پہلے اور ان سے بھی عظیم مقام پر رکھا ہے۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ جب ہم اور آپ پرانی طاقتوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں مصر کے اہرام آتے ہیں، روم کا کولوسیم آتا ہے، لیکن قرآن کی فہرست میں عاد سب سے اوپر ہے۔ تو یہ قوم عاد آخر تھے کون؟ یعنی کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ اگر ہم کلاسیکل مفسرین جیسے ابن کثیر کو دیکھیں تو انہوں نے ان کا نسب بہت واضح بتایا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سیم کی نسل سے تھے۔ اچھا، جنہیں تاریخ میں العرب العریب کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کا مطلب ہے اصلی اور پہلے عرب، یعنی یہ وہ عرب نسل تھے جن سے باقی عربوں نے زبان اور تہذیب سیکھی۔ اور یہ آباد کہاں تھے؟ یہ الاحقاف کے علاقے میں تھے۔ اگر آج کے میپ پر دیکھیں تو یہ عمان اور یمن کے درمیان کا حصہ بنتا ہے، اور ان کا جو مرکز تھا وہ ارم کہلاتا تھا۔ لیکن دیکھیں، ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی نظر سے جب میں اس کہانی کو دیکھتا ہوں تو میں ان کی طاقت کی پریکٹیکل وجہ ڈھونڈتا ہوں، اور میری تحقیق کے مطابق وہ وجہ ان کا تجارتی شاہراہ پر قبضہ تھا۔ آپ لوبان یعنی فرینکنسنس کی ٹریڈ روٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی، یہ لوگ لوبان کی تجارت کنٹرول کرتے تھے۔ سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ لوبان اس دور کی صرف خوشبو نہیں تھی، یہ قدیم دنیا کا آئل تھا۔ روم ہو یا مصر، عبادت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ بالکل، اور عاد کا اس پر مکمل قبضہ تھا۔ جو لوبان کنٹرول کرتا وہ دنیا کی اکانومی کنٹرول کرتا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے۔ پوچھئے، کیا الجھن ہے آپ کے ذہن میں؟ قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت 69 میں انہیں جسم میں بہت قداور یعنی لٹرل جائنٹس بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی جسمانی طاقت عام انسانوں سے بہت زیادہ تھی۔ جی،
कुरानिक बयान तो यही है। तो फिर अगर वो इतने बड़े थे तो इनके ढांचे कहाँ हैं? मुझे तो इसका फिजिकल प्रूफ चाहिए। अगर 10 फुट के जायंट ढांचे थे तो अब तक तो म्यूजियम्स उनसे भर जाने चाहिए थे। ये आर्कियोलॉजी की दुनिया का बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन इसका जवाब समझने के लिए हमें माजी हकीकत और रूहानी फलसफे को अलग अलग देखना होगा। ठीक है, थोड़ा वज़े करें इसको। पहली बात, कुरान ने उनके जिस्मानी फैलाव का वाज़े जिक्र किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज हजारों साल तक महफूज रहे। रेत के अंदर हड्डियां हमेशा बचती नहीं हैं। यानी उन्हें मिस्र जैसी ममिफिकेशन नहीं मिली थी। बिल्कुल, वक्त और मौसम उन्हें मिटा देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। वो क्या? ये एक अजीम राज है जो शायद अल्लाह ने जानबूझकर मुबहम रखा है ताकि ईमान का इम्तिहान हो। अगर हर अजाब का फिजिकल सबूत, उनके बड़े ढांचे चौराहे पर रख दिए जाएं, तो फिर ईमान क्या बचा? वाह, ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। फिजिकल प्रूफ ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। सही, खुदा ने एविडेंस उतना ही रखा है जितना जरूरी है। खैर, जब आपके पास इतनी दौलत और जिस्मानी ताकत हो तो कौम आद में शदीद तकब्बुर पैदा हो गया और सजा से पहले उन्हें समझाने के लिए नबी भेजा गया। नबी हूद अलैहिस्सलाम। सूरह हूद में वाज़े जिक्र है कि अल्लाह ने इन्हीं के एक भाई को भेजा। और यहाँ एक दिलचस्प नफ्सियाती पहलू है। नफ्सियाती पहलू? वो कैसे? हूद अलैहिस्सलाम ने उनके पास आकर सिर्फ तबाही से नहीं डराया। उन्होंने कहा कि अगर तुम शिर्क छोड़ दो तो अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। अच्छा, यानी उन्हें मजीद वेल्थ का वादा दिया गया। ये तो बड़ी हैरत की बात है। जी, लेकिन उनकी रगों में तकब्बुर इस कदर भर चुका था कि उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। मैंने जब क्लासिकल स्कॉलर्स को पढ़ा तो पता चला कि उनका असल जुर्म आर्किटेक्चरल एरोगेंस यानी तामीराती तकब्बुर था। बिल्कुल, सूरा अशवारा में बयान है कि वो हर ऊंची जगह पर बेमकसद महलात बनाते थे, जैसे उन्हें हमेशा जिंदा रहना हो। वो बस शो ऑफ करते थे और इंतहाई धीट बनकर चैलेंज किया कि ले आओ अपना अजाब। और उस तकब्बुर का जो जवाब आया वो उनकी सोच से बिल्कुल उलट था। अल्लाह ने आसमान से आग नहीं बरसाई। तो फिर अजाब कैसा था? सूरा अल हक्का वाला? जी, एक चीखती हुई हवा जिसे कुरान ने रीख सखरा कहा है। एक इंतहाई सर्द हवा जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। आप सोचिए, लगातार 8 दिन तक एक हरिकेन। साइंस के मुताबिक ऐसी मुसलसल हवा इतने दिन तक इस शिद्दत से नहीं चलती। ये मौसम नहीं, एक डायरेक्टेड वेपन था। सही कहा आपने। और शुरू में जब उन्होंने हवा के बादलों को देखा तो वो खुश हुए। हाँ, उन्होंने सोचा बारिश आने वाली है और वही हवा उन्हें जमीन पर ऐसे पटक गई जैसे किसी ने दरख्त उखाड़ दिए हों। कुरान ने इस मंजर के लिए आयजाज नखल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी खजूर के खोखले तने। लेकिन यहाँ एक अहम वजाहत जरूरी है। कैसी वजाहत? तारीख में बहुत सी इसराइलियात जोड़ दी गई। लोगों ने मशहूर कर दिया कि हिरम सोने का शहर था, सुतून हीरों के थे। हाँ, मैंने भी ऐसी कहानियां पढ़ी हैं। इब्न खल्दून ने इन किस्सों को सख्ती से रद्द किया है। कुरान की सच्चाई को ऐसी एग्जैजरेशन की जरूरत नहीं। सुतून थे, पत्थर के थे और वही उनका इंजीनियरिंग का फख्र था। उसी एग्जैजरेशन ने इसे अफसाना बना दिया था। मगरिबी साइंसदानों ने इसे सिंदबाद की दास्तान समझ लिया था। लेकिन यहाँ 1992 का नासा वाला ट्विस्ट आता है। निकोलस क्लैप और जेट प्रोपल्शन लैब की दरियाफ्त। बिल्कुल, रेडारों में माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती थीं जो रेत के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती थी। उन्होंने एम्प्टी क्वार्टर में कदीम तजारती शाहराएं दरियाफ्त की जो एक ही मरकज की तरफ जा रही थीं, जो ओमान का मकाम शिशर था। वहाँ एक 8 पहलू यानी ऑक्टेगोनल किला मिला जिसमें वाकई अजीम सुतून थे और वो 2800 BCE पुराना था। लेकिन यहाँ कुरानिक अल्फाज और जियोलॉजी का बिल्कुल एक जैसा होना हैरान कुन है। वो जो सिंखोल वाली बात है ना, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि उस किले के नीचे एक लाइमस्टोन का गार था। हाँ, और जब जमीन के अंदर का पानी सूख गया तो उस गार की छत बर्दाश्त नहीं कर सकी और बैठ गई। पूरा शहर अपने सतूनों समेत जमीन में धंस गया। कुरान ने सूरा अल हक्का में इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो था फॉलन, यानी गिरे हुए। सोचिए, कुरान का एक एक लफ्ज कितना टेक्निकल तौर पर हकीकत पर मबनी था। लेकिन मेरा सहाफी जहन यहाँ आकर थोड़ा उलझ रहा है। क्यों? क्या पॉइंट हिट कर रहा है आपको? देखें,
शिस्र का किला ठीक ठाक साइज का है, मगर कुरान कहता है कि इस जैसा शहर दुनिया में पैदा नहीं किया गया। क्या शिस्र वाकई एक सुपर पावर था? और दूसरी तरफ इबला टैबलेट्स जो सीरिया से मिले थे जी, जो 2500 बीसी पुराने हैं। उन मिट्टी की तख्तियों में वाज़े तौर पर इरम नाम के शहर का जिक्र है। और फिर जॉर्डन में वादी रूम है, जहां आज भी अशकाक यानी लिटरल स्टोन पिलर्स खड़े हैं। तो हम शिस्र को इरम कैसे मान लें? आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, आर्कियोलॉजी में इन पर काफी गर्मागर्मी रहती है, लेकिन कई मुहक्किकीन के मुताबिक उबार या इरम शायद एक पूरा खित्ता था, एक रीजन था। अच्छा, यानी किसी एक मखसूस शहर का नाम नहीं था। बिल्कुल, शिस्र शायद उस ट्रेड नेटवर्क का एक स्टॉप था और वादी रूम दूसरा हिस्सा। अच्छा, जैसे आज हम अमेरिका का नाम सुनकर पूरा कॉन्टिनेंट सोचते हैं, सिर्फ वॉशिंगटन नहीं। पानी सबक से महरूम हो जाएंगे। मैं एग्री करता हूँ। और जब हम उनकी मगरूरी को मौसम के तनाजुर में देखते हैं तो कहानी और साफ होती है। पेलियो क्लाइमेट की तहकीक कहती है कि एम्प्टी क्वार्टर कभी ग्रीन अरेबिया था। वहाँ दरिया थे और झीलें थीं। कुरान ने बिल्कुल ठीक बताया था कि इनके पास बागात और चश्मे थे। यही लोग किसी बंजर सहरा में नहीं, बल्कि एक लश एंड ग्रीन इलाके में थे। नासा के मैप्स ने उन्हीं पुराने दरियाओं का नेटवर्क दरियाफ्त किया है। और उन दरियाओं ने उन्हें गलत फहमी में डाल दिया कि उनका नेचर पर कंट्रोल है। उनकी तबाही किसी दूसरी कौम के हमले से नहीं, उनकी अपनी ताकत और तकब्बुर से हुई। तो इस डीप डाइव के बाद मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इस सब का आज के वक्त में क्या मतलब है। आज की जदीद तहजीब भी तो आद के नक्शे कदम पर चल रही है। हम बदलों को छूने वाली ऊंची इमारतें बनाते हैं और टेक्नोलॉजी को खुदा समझ लेते हैं। हमने रिवर्स के रुख मोड़ दिए हैं और खुद को हमेशा कायम रहने वाला समझते हैं। मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ना चाहता हूँ। इरम की ताकत उनका शादाब माहौल था, लेकिन जब मौसम बदला तो रेत ने उन्हें दफन कर दिया। हम खुद को टेक्नोलॉजी के जोर पर महफूज समझते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हमारा अजाब की हवा का वक्त करीब तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन सूरह अल फज्र की आयत 14 याद आती है, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। बेशक तुम्हारा रब निगाह में रखे हुए है। तो आज के बाद जब आप किसी अजीम तरीन इमारत को देखें तो बस एक सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या तुम्हें उनका कोई नामो निशान नजर आता है?